اس ڈسکشن میں باقی باتیں ساری ہوئی ہیں. چھت کا اگزامپل دی ہے, التزامی کا بھی لفظ یوز ہوا ہے, اس کو بھی بتایا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایٹ دا اینڈ ڈبیٹ یا چیلنج کیا ہے کہ انہوں نے صرف 2 چیزیں ثابت کرنی ہیں کہ احمد نبی مرزا صاحب ہے اور نشانات مرزا صاحب پہ پورے اترتے ہیں. باقی ہم لوگ جو ہے نا مین چیز کو, جو سائٹ پہ باتیں ہوئی ہیں وہ اس کو مین نہیں بنا سکتے. مین تو وہی رہے گا جو انہوں نے میں 10 دفعہ تو ریپیٹ کی ہیں یہ باتیں, اول 2 کر لکھ کر ایسے نمبر 1 نمبر 2 کر کے پہلے پیج پہ ہی ہے, وہیں سے شروع ہو گیا ہے بتانا پورا. ہاں جی دیکھیں, جب التزامی طور پہ انہوں نے کہہ دیا, التزامی طور کا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس کو لازمی سمجھتا ہوں, اس پہ بحث ہی نہیں ہے کہ نبی کی اسلام ہے کہ نہیں ہے مستحق صفاتی لحاظ سے. ہاں بحث یہ ہے کہ آیا وہ ذاتی نام کے لحاظ سے مستحق ہے کہ نہیں ہے. وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام ہی ہیں. یہ ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مستحق ہے کہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لازمی ہے, التزامی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. نہیں بھی میں ثابت کیا کروں, اس میں ہے, اسی میں پڑھا ہے ہم نے. ذاتی نام کے حوالے سے نہیں ہے. میں بھی یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ذاتی نام کے حوالے سے نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو بھی دکھانا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی نام کہیں پہ احمد بیان کیا ہے. یہ مولوی صاحب کے ذمہ ہے. بھائی سچ میں بھائی آپ کو ہماری تعریف کرنی چاہیے. سارے کام چھوڑ چھاڑ کے سر میں درد شروع ہو گیا, پھر بھی پڑھے جا رہے ہیں, ہم پڑھے جا رہے ہیں. میں نے بھی تو پڑھا ہے نا, میں دیکھیں نا میری بھی تو تعلیم ہے نا. تو ہمیں بھی پڑھنے دینا. نہیں پڑھیں آپ, میں صرف آپ کو یہ نہیں گچھا کیوں کر رہے ہیں. چلے پڑھیں. جزاک اللہ. 10 11 12 چلو 2 نشست تو اور لگیں گی مجھے لگتا ہے اس پر. کوئی بات نہیں. میرا پہلے اس عقیدے پر ہونا اور پھر چھوڑ دینا بھی اوکے اب پڑھیں. میں روکنا نہیں چاہ رہا, لیکن نا مجھے ایک چیز ادھر سے ملی ہے اس انوار العلوم سے, جس سے جو واٹس ایپ کا پوائنٹ بھی صحیح ہو جائے گا کہ وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس میں جو دیوار اور اس کا اور دوسرا بھی ہو جائے گا. اگر مجھے تھوڑا سا موقع دیں, اگر شور تھوڑا سا پڑھنا ہے, اگر موقع دیں. پڑھو نہیں وہ بات نہیں ہے. میں اماں کو دیکھ کر آتی ہوں, آپ یہ پڑھو. پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے. وہ جو واٹس ایپ پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. میں آتی ہوں 5-6 منٹ. یہ یاد رکھنا چاہیے, یہاں سے پڑھ رہا ہوں میں. اوکے, یہ انوار العلوم صفحہ نمبر 84 انوار خلافت میں سے ہے, جلد نمبر 30. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو احمد کہنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک نہیں, اور اس سے یہ مراد نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احمد نہ تھے. آپ احمد تھے اور ضرور تھے, لیکن احمد آپ کی صفت تھی نہ کہ آپ کا نام. اور جو شخص یہ کہے کہ احمد یہاں پہ علیہ السلام ہے, کیا یہ آپ علیہ السلام کی صفت نہ تھی تو وہ جھوٹا ہے, کیونکہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد نہ ہوتے تو حضرت مسیح موعود احمد ہو ہی کیوں کر سکتے تھے, کیونکہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے آپ کی شاگردی ہی سے حاصل کیا ہے. لیکن اب یہ آگے بات آ رہی ہے جو جو ابھی ہم آگے کریں گے, جو مطلب آپ کی بات بھی آگے جو آپ کہنا چاہ رہے تھے, لیکن باوجود اس کے یہ کہنا درست نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا, اور اس قول پر غیر مبائین کا یہ شور مچانا کہ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہو گئی بالکل غلط اور فضول ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی ہتک نہیں. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کہنے سے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہے, یا حضرت ابراہیم کو ابراہیم کہنے سے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہے؟ اگر ایسا نہیں تو حضرت مسیح موعود کو احمد کہنے میں حضرت وسلم کی کیوں ہتک ہونے لگی؟ کسی شخص کا پیشگوئی کا مستحق ہونا دلائل سے معلوم ہوتا ہے, اور جب دلائل اس بات کو تک کس وجہ سے ہتک ہوئی, یہ کہنا کہ آج وسلم کا نام احمد نہیں آپ کی ہتک نہیں ہے, کیونکہ صرف نام کا بغیر نام کی صفات کے ہونا کچھ فائدہ نہیں رکھتا جب تک کسی میں اس کے نام کے مطابق اوصاف نہ پائے جاتے ہوں. نام کوئی قابل عزت بات نہیں. دیکھو بعض لوگوں کا نام عبد الرحمن اور عبد الرحیم ہوتا ہے, لیکن وہ کام عبد الشیطان کے کرتے ہیں. اس طرح بعض کا نام
نیک اور شریف ہوتا ہے، لیکن دراصل وہ عبد اور بد وضع ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کا رکھا ہوا نام کوئی عزت کی شے نہیں ہوتا۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہیں کہ رسول اللہ میں احمد کی صفت نہیں پائی جاتی تو یہ آپ کی حد تک ہے، لیکن یہ کہنا کہ آپ کا نام احمد نہیں ہرگز آپ کی حد تک کرنا نہیں کہلا سکتا، بلکہ یہ ایک امر واقعہ کہلائے گا۔ پس جب کہ نام فضیلت کا ذریعہ نہیں ہوتا بلکہ کام فضیلت کا ذریعہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کا نام احمد نام ماننے میں آپ کی حد تک کس طرح ہو سکتی ہے؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی نہ ہوتا بلکہ کچھ اور ہوتا تو کیا اس میں آپ کی حد تک ہو جاتی اور کیا آپ کی برکات میں کمی آ جاتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو کچھ بھی ہوتا وہی بابرکت ہوتا، اسی نام پر دنیا اسی طرح فدا ہوتی جس طرح اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پر فدا ہوتی ہے، کیونکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فدا نہیں ہوتے بلکہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر فدا ہوتے ہیں۔ بس اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں، ہاں احمد کی صفات آپ میں پائی جاتی ہیں، تو پھر نادان ہے جو یہ کہے کہ ایسا کہنے سے آپ کی حد تک ہوتی ہے۔ اب یہ آخر جو میں نے پڑھا تھا وہ ہے قرآن کریم میں جو احمد کی خبر دی گئی ہے، اس کے متعلق میں نے وہ آیات پڑھ دی ہیں جس میں احمد کا ذکر ہے، اور اب میں خدا تعالیٰ کے فضل سے بتاتا ہوں کہ ان آیات میں احمد کا اصل مصداق حضرت مسیح موعود ہی ہیں، اور آج وسلم صرف صفت احمدیت کی وجہ سے اس کے مصداق ہیں، ورنہ جس احمد نام کے انسان کے متعلق خبر ہے وہ حضرت مسیح موعود ہی ہیں۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، اس سے وہ جو پوائنٹ ہے نا آپ کا بھی کلیریفائی ہو گیا، جو صفات کی بات کر رہے تھے، اور جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ بھی کلیریفائی ہو گیا کہ ان کا اصل میں اوپینین کیا تھا اس احمد کے حوالے سے، کہ وہ کس کو سمجھتے تھے حقیقی معنوں میں، حضرت مسیح موعود کو سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب۔ اور انہوں نے یہ دلائل دیے ہیں کہ نام صرف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر صفت نہ ہو، تو یہ بھی یہ دلیل انہوں نے دی ہے۔ تو اس لیے نبی کی جو صفت ہے وہ اصل میں احمد ہے، اور اسی وجہ سے پھر جو مرزا صاحب ہے وہ بھی احمد کلانے کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ذاتی نام کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہاں پہ صرف مرزا صاحب کا نام، کیونکہ ذاتی نام انہی کا نکلتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا میرے پاس دلائل ہیں۔ تو میرا بات اب کلیئر ہو گئی، اگر ابھی بھی واضح نہیں ہوئی تو پھر اور پڑھ لیں۔ بات تو کلیئر ہو گئی ہے، لیکن جو اس وقت بات ہو رہی ہے نا جس آیت کے حوالے سے، اس میں مصداق کے حوالے سے وہ ہم پیچھے یہ کلیریفیکیشن نہیں آ رہی تھی، پہلے وہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا، پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ نہیں مین مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد، لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نام کی وجہ سے وہی مصداق بنتے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے نا اصل تو ان کا اوپینین کلیئر ہو کے سامنے آ رہا ہے، اور جو صفات کی بات تھی وہ بھی میں نے ابھی پڑھی ہے، اس سے کلیئر ہو گئی ہے۔ تو سر صاحب آپ آ گئی ہیں تو آگے کنٹینیو کر لیں، میں نہیں چاہتا اوپن آئی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ ہاں جی میں نے سال پہلے بھی یہاں پہ آیا تھا ٹک ٹاک پہ، میں نے یہی موقف دیا تھا لوگوں کو کہ اسم ذات کے حوالے سے یہاں پہ حضرت مسیح موعود السلام ہے، اور اس میں صفت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ یہ کوئی ایسا موقف نہیں جو مجھے آج پتہ چلے یا میں آج دے رہا ہوں یا 2 دن پہلے، ہمیشہ سے جو میں نے جماعت سے تعلیم پائی ہے، مربیان سے پوچھا، یہی مجھے ملا ہے، اور یہ میں بار بار کہہ چکا، لوگ گواہی دے سکتی ہیں۔ اچھا لیکن بٹ صاحب بات پتہ ہے کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں اس میں احمد آیا ہے، صفت احمد نہیں آیا، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ صفات کے حساب سے تو ہو سکتا ہے مطلب، لیکن جو مین جو ہے نا وہ حضرت مسیح موعود ہی ہیں، مطلب بات اصل وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اس آیت کی روح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسم ان کا ہے، اسم تو نہیں، اس میں ثابت وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسم تو نہیں ان کا، اسم تو اصل میں ان کا حضرت مسیح موعود کا ہے احمد، وہ کہہ رہے ہیں ان کا نام احمد نہیں تھا، وہ صرف صفتی نام تھا، تو ہم صفت والے نام کو اس میں احمد میں کیسے جوڑیں گے اس آیت میں؟ تو یہ بات یہ بھی اصل بات ہے۔ وہ ٹھیک ہے انہوں نے فضائل بیان کیا کہ نام کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یہ سب کچھ، لیکن ان دی اینڈ وہ جو آیت کا ہم بیک گراؤنڈ پڑھ رہے ہیں نا اس کے حوالے سے جو چیز ہے وہ سامنے اس طرح سامنے ہوتی ہے کہ حضرت مسیح موعود کو وہ لے رہے ہیں، اس میں ہم ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ صفاتی لحاظ سے فور شور وہ صفاتی لحاظ سے کر رہے ہیں، لیکن وہ آیت میں جو مطلب نکال رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں احمد کا ذکر ہے، اور وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ اسم کی اپنی کیا وہ چیز ہے فضیلت، اور صفت کی کیا فضیلت ہے، وہ انہوں نے الگ سے کلیریفائی کر دی، کیونکہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو حتک ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ بھی ایکسپلین انہوں نے کر دیا یہ ثابت کرنے کے لیے۔ ہاں جی تو ہاں یہی بات ہے نا کہ یہاں پہ اس میں ذات کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی ہیں، میں نے بھی یہی بار بار کہا، انہوں نے بہت اچھی دلیل دی ہے کہ کسی نبی کا نام لینے سے دوسرے نبی کی حد تک نہیں ہوتی، کہ اگر ان کا نام ہی احمد ہے تو اگر آپ کہیں گے ٹھیک ہے ان کا نام ہے تو اس میں حد تک کیسے ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ حد تک تب ہوتی ہے جب آپ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفات نہیں پائی جاتی، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ صفات کا ہونا لازمی ہے، نام تو کوئی بھی پھر ہو سکتا ہے، یہ بھی انہوں نے دلائل دی۔ چلو بہرحال ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ
कुछ ना कुछ वाज़ेह हो गया होगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुझे इतना तो नहीं पता, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बहस चल रही है, लेकिन जगह जगह में फ़र्क होता है जहाँ तक मुझे लगता है मेरे नाक़िस इल्म के हिसाब से। जहाँ पे कुरान की बात आ जाती है तो जैसे कलमे में अल्लाह और मोहम्मद का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है, तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में अहमद या मोहम्मद का नाम इस्तेमाल करे और उससे मतलब कोई और हो। जी इस वजह से कि हज़रत मुसीह मौद भी तो अल्लाह के नबी है ना, तो अल्लाह को क्या उसमें यानी कि रोक है, वो अपने किसी नबी के नाम ना ले। तो अल्लाह के नबियों का तो और भी, माजरत चाहती हूँ मैं थोड़ी सी ज्यादा डेप्थ में चली गई, थोड़ी सी जज्बाती हाँ हो जी गई हूँ इस बात के लिए कि अल्लाह के इट्स ओके, आप खुल के सवाल कर सकती हैं। मुझे हमारे खत्म नबूवत मुझे भाई बेचैनी ये है कि आप एकदम डायरेक्ट कह रहे हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं। हमने तो मेहदी और मुस्लिम मौदी पढ़ा है हर जगह, लेकिन आप एकदम से हजरत मसीह मौद को नबी का ओहदा दे रहे हैं। और अगर ऐसी कोई बात थी तो हजरत मुस्लिम वो नहीं, मौद वो को उम्मती ज़िल्ले बरूज़ी नबी थे। वो नहीं, उन्होंने खुद मना किया कि मुझे इस तरह से नबी और रसूल डायरेक्ट नहीं कहा करो। जी जी, उम्मती नबी, उम्मती ज़िल्ली गैर हकीकी गैर मुस्तकिल नबी है। एक तरह से देखा जाए तो हमारी आने वाली नस्लों पे ये जुल्म हो जाएगा अगर हम ऐसे कहेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। उसकी वजह ये है कि क्या ये बात फिर सही होगी कि अब थोड़ा सा माजरत चाह रही हूँ, मैं थोड़ा सा झिझक रही हूँ कहते, तो इसका मतलब ये हुआ कि माजरत वो ना करें, लोग, आप आराम से बात करें खुल के। जी माजरत क्यों कर रही हैं? नहीं हाँ मेरा बिल्कुल, बेटा, मैं इसलिए नहीं नहीं कह रही नहीं, हूँ इट्स कि इसका ओके मतलब कौसर ये है सिस्टर। कि ठीक है मैं डायरेक्ट कहती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो मुसलमान है वो सही हमें कत्ल करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और फिर हम कहें कि नहीं नबी आ गए हमने मान लिया, तो वो तो फिर छुरा उठा लेंगे ना। देखें, जब आप किसी मेहदी नबी और को मानती हैं तो क्या नबी की कसम को मानने के नतीजे में लोगों ने तलवारें नहीं उठाई? ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन एक चीज है कि वो आखिरी नबी हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हैं आखिरी नबी, और उनके अंदर दाखिल होना ये तो सारे हिंदुओं की बातें हैं, जैसे सुनना है दूसरा जन्म लेना, और फिर बाकी नबियों में क्यों नहीं दूसरा जन्म लिया जा रहा। मैं बहुत खुल के पूछ रही हूँ, मुझे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप लोग मुझे बाद में चाहे कितना कोस लीजिएगा, मैं इस काबिल हूँ कि मुझे कोसा जाए, लेकिन प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ये हक आपको अल्लाह ने दिया है, कोई आपको कुछ नहीं कोस रहा। हम मैं इस खुल की बात वक्त करने इतनी के लिए हैं। बेचैन हूँ कि मैं शायद रात को भी सही तरह से ना सो सकूं कि ये कैसे हो सकता है। किताबों में लिखा हुआ पढ़ लो, चाहे कुछ एक जिंदगी गुजारी हो, उसके अंदर हमने यही पढ़ा है कि हाँ जी। ला इलाहा अशहदु अल्लाह। हम अहदनामे से पहले जो अहदनामा पढ़ते हैं उसमें भी हम यही कहते हैं, लेकिन उसके अंदर हमने कभी हज़रत मसीह मौऊद का नाम नहीं लिया। एक मैं भी ज़रा मैं एक दफ़ा कोशिश कर लूँ, फिर आप मुझे वो कर लेना, करेक्ट कर लेना अगर बात पाई, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मैं कोशिश कर लूँ, तो आप मुझे करेक्ट कर लेना। हाँ जी, कर लें, कोई मसला नहीं। जी जो मैंने अभी तक सीखा है वो ये कि ये जो नबी होना या ना नबूवत या ज़िली या ब्रूज़ी या जो भी, वो डिस्कशन कुछ और है, वो कोई और टॉपिक है ना। लेकिन इस टॉपिक पे जो ये अहमद की बात हो रही है कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है या नहीं, इसमें से वो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम है या नहीं है, इसमें इसके साथ उसका तल्लक नहीं है। क्योंकि अगर हमने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को जब नबी मान ली है, बेशक अब वो हम हो हज़रत मुस्लिम मौद हों या लाहौरी जमात, उन्होंने एक दफ़ा नबी मान के तो फिर ये नेक्स्ट जो है ना, ये इसके ऊपर बहस हो रही है कि वो अहमद है या नहीं है। एक दफ़ा अगर हम उनको जब नबी मान लेते हैं तो फिर ये आगे बनती है। जो नबी नहीं मानते उनके लिए ये बहस है भी नहीं। अब यहाँ जो अगर अब यहाँ गैर अहमदी होंगे, उनका हमारे साथ ये बहस करना, जो मुझे अभी तक समझ आई है, मुझे करेक्ट कर लेना अगर मैं गलत हूँ, तो
उनका हमारे साथ ये बहस करना नहीं बनता कि वो हमारे साथ इसके ऊपर बहस करें, क्योंकि हमने उनको नबी माना है, इसलिए हम अब लाहौरी जमात के साथ बहस कर सकते हैं क्योंकि उनका इख्तलाफ है। और क्या मैंने लाहौरी जमात ने तो उनको नबी नहीं माना। नहीं, उन्होंने माना है, लाहौरी जमात ने नबी माना है। लाहौरी जमात जो उनसे वो अहमद के ऊपर बहस मुजद्दद कर रही हैं। मुजद्दद मानती हैं ना, वो मुजद्दद मानती हैं। अच्छा, अब या जो नबी या मुजद्दद वो अगर आप ज़्यादा दें तो मैं इन जो कौसर साहब आई हैं, क्या नाम है इनका, अगर इनकी बातों का जवाब दे दूं, कौसर साहब जी। तो मैंने जो अभी तक समझा वो मैंने गलत समझा फिर? नहीं, आपका जो बात है ना वो आपने दुरुस्त कही है, सिर्फ लाहौरी जमात के हवाले से आपकी बात दुरुस्त नहीं, बाकी आपने दुरुस्त है। वो नबी नहीं मानते लाहौरी जमात ओके जी। अब मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। जी। हाँ जी, देखिए, पहले तो आपने तलवारों की बात की, वो मैंने आपको वाज़ह कर दी कि नबी के वक्त भी लोगों ने तलवारें निकाली थी, वो हर नबी के वक्त दिक्कत थी, कोई ऐसा मसला नहीं। दूसरी बात आपने कही कि हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें तो बताया नहीं गया। मैं ये कहता हूँ कि बचपन से मैं यही सुनता आ रहा हूँ, और 1991 में तो तुम्हारा MTA चल रहा है, वहाँ पे हर जुमे को सवाल जवाब हुआ करती थी खिलाफे की, और वहाँ पे सवाल इस तरह के होते थे। मैं जर्मन कुतब शुरू से जब से पढ़ रहा हूँ 35 साल से, उसमें भी यही बातें लिखी हुई हैं। तो अगर यानी कि आपकी नज़र में ये बात नहीं आई या आपको नहीं किसी ने बताई, तो वो हो सकता है कि कोई ऐसा हो गया हो, लेकिन अमूमन ये कि ये हमारा अकीदा है और ये हमें बताया जाता है। अच्छा, दूसरी बात आपने की कि आखिरी नबी की, देखिए नबी की कसम, अगर कल हमारी इनके सच्चे साहब की बरात में बात हुई है, मेरी तो इस मौजू पे बेशुमार बातें हो चुकी हैं कि मुझे कुरान करीम से एक दलील ला दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबरों के लिहाज से आखिरी नबी हैं कि उनके बाद किसी किस्म को नबी पैदा नहीं होना। कोई दलील नहीं देता। बात यह है कि फैसला कुरान ने करना है, मैंने यार आपने नहीं करना। तो अगर कुरान दलील देता है, इजमा बताते खुद कभी दलील नहीं हुआ। अब यहूद का इजमा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं है, तो क्या वो अपने इजमा की वजह से, अपने उलमा की वजह से दुरुस्त हो गए? इजमा बताते खुद कोई दलील नहीं होता। उनका मुसलमानों को इजमा है कि नबी की नुसरत के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, लेकिन हमारा हक है, कुरान कहता है कि सच्ची हो तो दलील लेके आओ। जब हम दलील मांगते हैं कि कुरान में उसकी दलील क्या है, तो दलील दे नहीं पाते। आज भी मेरी बात, मेरी तो रोजाना इस मौजूद में बात हो रही होती है। अगर आपके पास, आप समझती हैं कि कुरान में कोई ऐसी आयत है जहाँ से नबी की नुसरत आखिरी नबी हैं कि उनके बाद कोई किसी किस्म का नबी पैदा नहीं होगा, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, उस पर गौर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर है तो दे। इसका मतलब है कि कुरान में कहीं जिक्र नहीं है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हाँ जी, चले मैं अब मैं बता देता हूँ। देखें, ख़त्म नबूवत के 3 पहलू हैं। 2 पहलू हैं जो हम में और गैर अहमदी मुसलमानों में इत्तेफाक है जिन पर। तीसरा पहलू है जो बजाते खुद बेईमानी है और वो गैर अहमदी मुसलमानों ने बनाया हुआ है। अब मुझे 2 मिनट दें, आपको वादा हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद किसी की शान नहीं, वो शान के लिहाज से आखिरी मुकाम पर फायद है। मुसलमान भी मानते हैं, गैर अहमदी और अहमदी मुसलमान भी मानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है वो क़यामत तक है, उनकी नबूवत का ज़माना क़यामत तक है। कोई ऐसा नबी नहीं आ सकता जो उनकी नबूवत को काटे या कोई और शरीयत लेके आए। गैर अहमदी मुसलमान भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तीसरा पहलू वो है जो कि बेमानी है। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबरों के लिहाज से आखिरी नबी हैं। मेरा ये कहना है कि नंबरों के लिहाज से आखिरी होना कभी भी किसी इलामी या गैर इलामी किताब ने बाइस फ़ख्र या बाइस मानी नहीं बताया। अगर मैं ट्रेन पे आखिर में दाखिल होता हूँ तो मेरे और 100 जो पहले दाखिल हो चुके हैं कोई फ़र्क नहीं है। तो आखिरी पोजीशन उसको मनफी तौर पर तो देखा जा सकता है, लेकिन उसका कोई मुस्बत पहलू कभी नहीं निकलता। जेड आखिर पे है, ए पहले है, ए को जेड की पोजीशन दे दें, जेड ए वाली पोजीशन ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से जो हम में इख्तलाफ है, वो कहते हैं जहाँ पे इख्तलाफ नहीं, 66% में हम वो भी नहीं मानते, आप उम्मत से ही बाहर। अब बताएं कि इख्तलाफ है क्या, उसके मानी क्या है, उसकी हैसियत क्या है, और उस वजह से वो कहते हैं आप जो है हमने जमा कर लिया, आप उम्मत मुसलमान से बाहर हैं। जबकि अल्लाह कुरान में कहता है कि जिसका पल्ला भारी होगा उसे खौफ करने की ज़रूरत ही कोई नहीं। हमारा पल्ला भारी है। 2 हिस्सों में हम उनसे इत्तफाक करते हैं। एक हिस्सा जिसमें इत्तफाक नहीं करते वो कभी भी बाइस फाजियाँ बामानी नहीं हुआ। मैं आयत बता देता हूँ आपको। ये आयत है सूरह मोमिन आयत नंबर 33। अल्लाह ताला फरमाता है कि यूसुफ की वफ़ात के बाद तुम ये समझ बैठे कि अब अल्लाह ताला कोई रसूल नहीं भेजेगा। इस अकीदे रखने वाले को अल्लाह ताला आगे उसी आयत में गुमराह करार दे रहा है।
जैसे उन्होंने कहा कि रसूल नहीं आएगा, जैसे ऐसे गैर अहमदी कहते हैं रसूल नहीं आएगा, जबकि अल्लाह ताला वहाँ पे ये दलील दे रहा है कि ये अल्लाह ताला का मामला है, रसूल भेजे या ना भेजे। अल्लाह ताला ने इंसानी जो अकल या उसके ख्वाहिश के मुताबिक रसूल नहीं भेजना। तो इसकी कुरान करीम में क्या दुनिया की किसी किताब में कोई दलील नहीं कि नबी की नंबरों के लिहाज से आखिरी नबी है। शुक्रिया। बट साहब असल में ना गैर अहमदी की बात नहीं हो रही इस वक्त। वो कोसा साहबा पूछ रही हैं, वो खुद अहमदी हैं, तो इस वजह से उनके जहन में सवाल आ रहा है, उनको खटक रहा है, तो हमें उनके तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं गैर अहमदी ठीक है, क्या करते हैं, क्या नहीं मैं करते, उनको वो नहीं अहमदी हमने मान के करना, मैं उनको वो नहीं अहमदी मान के कहना। हाँ जी, मैं उनको अहमदी समझ की बात कर रहा हूँ। मैं गैर अहमदियों को इसलिए बताया कि उनको पता चले फ़र्क क्या है हम में और उनमें। मैं उनको अहमदी समझ की बात कर रहा हूँ। उनके सवाल आते हैं, ठीक है, जायज़ है। मेरा जो है ना सबसे बड़ा मसला यही होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ट्यूनिंग हुई हुई है कि हमने इल्ज़ामी जवाब देने हैं। जब मैं ज़्यादा सवाल करती हूँ तो मुझे जो है भेज दिया जाता है ये जो धैर्य होते हैं इनकी साइट्स पे कि जाके देखो मुसलमान तो इनको जवाब नहीं दे रहे, तो मुसलमान सारा दिन जो है अहमदियों के पीछे पड़े रहते हैं। मुझे इससे क्या लेना देना? मेरा तो अपने क्वेश्चन है वो हल करें। अब ये तहरीर जो पढ़ रहे हैं, मुझे जो अभी तक कॉन्सेप्ट पता था बचपन से, बॉर्न अहमदी हूँ, कि इस्मुहु अहमद का मिस्दाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब यहाँ पर हम जो है कहें कि इसमें ज़ात के हवाले से वो, बट साहब आपको पता होगा बचपन से, मुझे नहीं पता था। और इसमें अहमद के हवाले से एक और चीज़ जो हम पढ़ते आ रहे हैं कुरान मजीद की, पहले हमने आयत से शुरू किया था, फिर अहादीस पढ़ी थी, उसके बाद तफासीर भी इवन पढ़ी थी हज़रत मसीह मौद की। उस वक्त तक हमारा यही था कि इससे हज़रत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। जब से खलीफा सानी को पढ़ना शुरू किया उस वक्त से उनका ओपिनियन ये सामने आया है। क्या ये बात करेक्ट है प्रोफेसर साहब? आपने भी यही समझा बहुत था? हार्श ओपिनियन, एग्जैक्टली 100%। अच्छा, हम लोग मुझे पहले एक इतनी क्वेश्चन खुशी का खुशी जवाब गए थे दे अपने दें। घर। मेरे पास बहुत एक क़यामत के दिन हमारी शफात कौन करेगा? हाँ जी, एक मिनट। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत के दिन हमारी शफात कौन करेगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि शफात क्या है? सिफारिश के अगर कोई छोटे मोटे हमारे गुनाह रह गए हों तो अल्लाह ताला हम लोग जो हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, उनकी जी उम्मत है ना, हम उनकी उम्मत में से कहलाते हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है, तो वो हमारी शफात करेंगे। हाँ जी, वो आप समझ आ गई, जज़ाकुमुल्लाह। जैसे ओके, जैसे नहीं अब्बू से डांट पड़ती है तो मामा कहते हैं यार बच्चा है छोड़ दो परा, जी ऐसे जी करते। वो चीज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ उम्मत की जी शफात करेंगे, अपनी उम्मत की। तो इसका मतलब ये है कि हम किसकी उम्मत हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उसके बाद हम अगले नबी को इनको मानते हैं, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं। और जी ये जी भी हम मानते हैं कि इसके बाद और नबी भी आ सकते हैं। और नबी भी आ सकते हैं। कुरान ये कहता है, हम इसलिए लेकिन मानते हैं कि कुरान ये लेकिन कहता है। हाँ जी। लेकिन हम उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हम दिया गया है, इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला जब किसी नबी को भेजता है तो उसे दलाइल सिखा के भेजता है। हर नबी अपने दलाइल अल्लाह ताला से सीखता है। तो जब अल्लाह ताला दलाइल सिखाएगा उसे कुरान की हिकमत समझाएगा, कुरान से फिर उसने बताना है कि उसकी नबूवत के दलाइल क्या हैं। हम देखेंगे, परखेंगे, निशानात देखेंगे, ईमान ले आएंगे। इनकार करना वहाँ नहीं लगेगा तो इनकार कर देंगे। सूरह सफ आयत नंबर 7, इसके अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जब तबलीग की थी, तबलीग करते वक्त उन्होंने जब बताया था कि मैं नबी आया हूं तुम्हारे ऊपर, और ऐसा ना समझना कि इसके बाद कोई नहीं आएगा। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फौरन बाद जो नबी आएगा आखिरी होगा और वो डायरेक्ट आएंगे मेरे बाद। उनकी निशानी ये है, चाहे वो उसमें सदियां आ जाएं, 600 साल 700 साल आ जाएं, लेकिन वो मोहम्मद अहमद जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। और उसकी निशानी ये कि डायरेक्ट वो आएंगे, उनके दरमियान में कोई और नहीं आएगा। फिर हजरत, अगर वो अहमद है तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बीच में आए हैं? बात ये अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका ही जिक्र किया है। आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल बदतमीजी नहीं कर रही, मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं घबरा रही हूँ इन चीजों से। अब ये उम्र नहीं है कि जितनी देर मैं जी गई हूँ इसके बाद मैंने इतना ही और जीना, बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे अपने आप को सही करके जाना है। हाँ जी, हाँ आप जी, सॉरी ना कहें, आप आराम से रिलैक्स हो जाएं। हाँ हाँ जी, जी हाँ जी।
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اگر آپ نے حضرت مسیم اور اسلام کی تفسیر پڑھی ہو سورہ فاتحہ کی، تو انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ کا زمانہ تھا وہ ان کی شان احمد کا زمانہ تھا، تو انہوں نے رحمان سے نکالا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ محمد بن جاتا ہے، اور رحیم سے نکالا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ احمد بن جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے دو نام سکھائے گئے تھے وہ یہی سکھائے گئے تھے، محمد اور احمد۔ تو بات یہ ہے کہ زمانے کے لحاظ سے اور صفت کے لحاظ سے یہ پیش گوئی اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے، لیکن اگر ذاتی نام دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بھی یہ دعویٰ موجود نہیں ہے کہ میرا ذاتی نام احمد ہے۔ اگر ذاتی نام احمد ہوتا تو پھر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو احمد کر کے بھی کر سکتے تھے۔ اگر ایک شخص کے دو ذاتی نام ہے نا، تو یہاں پہ گورنمنٹ میں کاغذوں میں بعض دفعہ ایک ذاتی نام لے لیا جاتا ہے، بعض دفعہ دونوں لے لیے جاتے ہیں، کیونکہ دونوں ذاتی نام ہوتے ہیں۔ تو جب نبی کی وسلم کا نام ذاتی نام صرف محمد ہے، اور محمد کو ہم بدل نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد لگایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہ نبی کی وسلم کا ذاتی نام جو تھا، جو ماں باپ کی طرف سے تھا، وہ محمد ہی تھا۔ احمد جو صفاتی نام ہے، وہ احمد صفاتی نام کئی ہیں نبی کی وسلم سے، رحیم بھی پھر ہے، الاسلام سے وہ حدیث ہٹا دیں نا، الاسلام پہ حدیث آیا پڑھی کہ تھی ہم نے۔ آیا کہ نام کے وجہ سے ہم جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس کو ہم برحق سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، صرف ایک نام کی وجہ سے ہم شک میں پڑ گئے۔ نہیں آخری اور نبی یہ کو اس آپ بحث کو حضرت مسیح موعود نے کیوں نہیں اٹھایا؟ دیکھیں ایک منٹ مجھے ذرا ٹائم دیں۔ ہم نے جب یہ آیت پڑھنی شروع کی تھی نا، تو ہم لوگوں نے الاسلام پہ جا کے کلک کیا تھا صحیح بخاری کی جو حدیث تھی 4896، کہ اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے میرے کچھ نام ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں، اور میں ہی وہ مٹانے والا ہوں کہ میرے ذریعے سے آگے حدیث چل رہی ہے۔ اب یہ والی حدیث الاسلام سے ملی ہے، یا تو پھر وہ وہاں سے ہٹا دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے تفسیر حضرت مسیح موعود کو کلک کیا، وہ پڑھا سارا، وہاں پر اس طرح کی بحث نہیں ملی۔ تو پھر ہم لوگ صرف خلیفہ ثانی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک ایسی بحث میں چلے گئے ہیں کہ جس کو حضرت مسیح موعود نے نہیں اٹھایا۔ نہیں خلیفہ ثانی نے، آپ نے جو کل یا پرسوں حوالہ پڑھا تھا، انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، اور ازمسین سنگ الہامات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں احمد بھی کہا ہے، براہین احمدیہ میں یہ الہام موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں احمد کہا ہے تو مجھے کیا اختیار ہے کہ میں کہوں کہ وہ احمد نہیں ہے؟ اللہ انہیں تعالیٰ احمد بھی کہا ہے، یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں وہی احمد ہیں، فرق ہے نا۔ میری بات سنیں نا، جہاں تک صفاتی ناموں کا تعلق ہے، آپ حدیث کی بات کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتاتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صفاتی نام دے رہا ہے، تو وہ کیوں نہیں پھر وہاں پہ سوال ہوتا جی قرآن سے نکال دیں؟ صفاتی نام ہونا اور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی دیے ہیں، بعض انبیاء کو ایک ہی نام سے پکارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کے نام سے پکارا، جو پہلا انسان پیدا ہوا تھا اس کو بھی آدم کہہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آدم کہہ دیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ واحد کہتا ہے، پھر وہی نام دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ تو لہذا یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ ایک نام زیادہ انبیاء کو دیتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو پھر وہی نام جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو دیا ہے احمد، تو پھر ہم ان کو اس میں ذات سے کیوں نکال رہے ہیں؟ دیکھیں کیونکہ ذاتی نام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ذاتی نام میرا احمد ہے۔ تو ذاتی نام حضرت مرزا صاحب کا بھی وہ نہیں تھا احمد، ہاں غلام ہے، احمد تھا، مرزا غلام احمد۔ ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، غلام جو ہے یہ لفظ ان کے اباء و اجداد کے ساتھ لگتا آیا ہے، ان کے باپ کے ساتھ بھی، دادا کے ساتھ بھی، چچا کے جو بھی رشتے دار ہیں بڑے، ان کے ساتھ غلام لگتا آیا پیچھے سے۔ لیکن احمد جو قادیانی ہے، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ قادیانی کے تعلق ہے، وہ قادیان سے ہیں، ان کا ذاتی نام جو نکلتا ہے، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، میں نے بھی تحقیق کی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو نمبرنگ تو نمبرنگ میں تو انہوں نے، اچھا ٹھیک ہے، ایک بات ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد کہا ہے نہیں کہا، یہ تو حدیث موجود ہے نا، ہم وہ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ 4 نام بتائے ہیں نبی کی وسلم نے، اور چاروں صفاتی نام ہیں، ذاتی نام ان چاروں میں سے کوئی نہیں ہے، ذاتی نام محمد ہی ہوا۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ صفاتی نام ہے؟ اچھا ایک حدیث وہ بھی تو ہے کہ میں اسم کی بشارت ماہی آصب احمد، ہاں جی، نہیں کہ میں اس کی ہوں، خوشخبری ہوں، عیسیٰ کی خوشخبری ہوں۔
देखिए हाँ, मैंने आपको पहले कह दिया है कि ज़माने के लिहाज से और सिफात के लिहाज से सबसे अव्वल मिसाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। नाम उनका अहमद ज़ाती तौर पे आपने ये साबित करना है, अगर कोई कर दे तो मैं मान लेता हूँ, आप साबित तो करें ना। जो 4 नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं वो सिफाती हैं, कुरान में भी आ रहे हैं वो नाम। रऊफ आ रहा है, रहीम आ रहा है, शहीद आ रहा है, मोमन आ रहा है, कई नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दे रहा है, और अपने आप को भी नाम दिए अल्लाह ताला ने सिफाती तौर पे। बट भाई ये अल्लाह सच है कि ये हजम करना अल्लाह वाकई बहुत मुश्किल है, और जितनी डिटेल में जाके खलीफा सानी ने ये बहस की है ना, और वो ये ऐसे लग रहा है कि हजरत मसीह मऊद ने इस चीज़ को इतना नहीं किया जितना इन्होंने ओपनली डिस्कस की। हजम करना मुश्किल लग रहा है। देखिए अल्लाह का नाम जाती नाम अल्लाह है, एक ही जाती नाम होता है, अल्लाह का भी जाती नाम एक ही है। बाकी जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम है वो बेशुमार है। जाती नाम खुदा ताला का एक ही है और जाती नाम एक ही होता है, या अगर 2 होंगे तो फिर वो 2 ही होंगे। ठीक है, एक तो मैं जरा कोशिश कर लूं कि मुझे कैसे समझ आई है। जी जी कर ले। आप करेक्ट कर लेना फिर बेटर प्लीज। अच्छा, मुझे ये समझ आई है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मस्ताक हैं इस आयत के, लेकिन ये इशारा मेरी तरफ भी है। ठीक है, मुझे ये उनकी तरफ से ये आया है। हज़रत मुस्लिम मौद ने कहा है कि सिफाती नाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्तिज़ामी हैं इसके मस्ताक इस आयत के, लेकिन इसमें नहीं, ज़ाती नाम से मोहम्मद हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम इसके मस्ताक हैं। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब मैं एक सवाल कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप बात करें। बात ये है, सवाल ये है कि आया हज़रत मसीह मौद का नाम अहमद ज़ाती निकल जाएगा? नहीं निकलता। मेरा दावा यह है कि निकलता, मैंने तहकीक की हुई है, सिर्फ उनका नाम ज़ाती नाम अहमद निकला। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने उनको इस नाम से पुकारा है कि नहीं पुकारा है? अल्लाह ताला ने पुकारा है, तो लिहाजा मेरे लिए तो मामला कोई असला मुश्किल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हैं, उसके बाद ज़ाती नाम के लिहाज से सिर्फ हज़रत मसीह मौद आते हैं, और उनका नाम ज़ाती नबी नाम वसल्लम पहले फिर मैंने गलत कैसे हो कहा गए? है? आपका मतलब है मैंने गलत कहा है फिर? आपने दुरुस्त है, दुरुस्त है। ये ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह। लेकिन अब मुझे जो समझ नहीं ना आई वो ये अमूरी की है। ये अमूरी वो जो सी कह रहे हैं कि वो छत को करते हैं, रोकते हैं, या वर्टिकल है, वो ताहिर भाई ने भी कहा था, ये कैसे इसमें एडजस्ट हो रहा है? ओ वो चले गए हैं। स्टिल बताइए, आपको मुझे अब समझ आई है? मुझे बहुत सारा नए लफ्ज़ याद हो गए। हाँ, मैं वही माशाल्लाह हैरान हो रही हूँ। इट्स गुड। अमूदी कहते हैं वर्टिकल को और दूसरे कहते हैं हॉरिजॉन्टल को, लेकिन वो एक साइड की बात थी। ओके, वो जब इसमें हम ये ऐसे नहीं है, लेकिन उसका वर्ड है बाकी ना सारे इंग्लिश का, तो इस वजह से उसको याद करना आसान हो गया। लेकिन गुड, अच्छी बात है, कोई भी लफ्ज इंसान याद करे उसकी वोकैबुलरी में इजाफा होता है। मेरी वोकैबुलरी में जो इजाफा हुआ है वो ये हुआ है कि वो मुझे हजम नहीं हो रही है, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे उल्टी करनी है। ठीक। इसलिए कि एक नई चीज़ है ये। हाँ, मैं I'm sorry, मैं जब भी इतना कोई वो फिर बोल आयत रही पढ़ के हूँ। पूछता है, जब भी वो आयत पढ़ के पूछता है, तो पहला दिमाग में यही आता है कि इस्मु आमद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहस ऐसी है कि जो हज़रत मसीह मऊद ने नहीं उठाई, अगर ये इतनी इम्पोर्टेंट थी। दुरूद शरीफ हम पढ़ते मैं हैं। अब नीचे उतर रहा हूँ, लेकिन ये हदीस लगाई है, ये अगर पढ़ सकें तो पढ़ दें प्लीज़। इसके हवाले से कोई हदीस है, अगर इससे हेल्प होती है तो फिर वो म्यूट ही रहेंगे कह रहे थे, लेकिन वो हदीस के लिए या कोई मगर प्रॉब्लम ये है कि हदीस इतनी ब्लर है कि मुझसे नहीं पढ़ी जा रही है। किसी से पढ़ी जा रही है? मुझसे पढ़ी जा रही है। हाँ, मुझसे पढ़ी जा रही है। ठहरो, मैं अपने आईपैड से आती हूँ, फिर इसको बड़ा करती हूँ। FIA ने चुन लिया है। इट्स ओके कौन सा सिस्टर, स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस की वजह से ये होता है। आप रिलैक्स रहें। देखें, जो नक्शा देखें कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं कि जिस दिन क़यामत आएगी उस दिन आसमान दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। ठीक है,
नेक और पाक रूहें आएंगी वहां पे, सारे वहां खड़े होंगे, फरिश्ते भी आएंगे, रूहुल कुद्दूस भी आएंगे और अल्लाह फैसला करेगा। आप सोचें वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन कौसबा जी, और आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह मियाँ नियत भी देखता है, और अगर आपकी नियत ठीक है और आपको नहीं इल्म हासिल हो रहा, जैसे किसी तक नहीं आवाज़ पहुंचती अल्लाह की, तो इसका ये तो नहीं मतलब कि वो पूछा जाएगा ऐसे कि जैसे जिसके तक आवाज़ पहुंचती है अल्लाह की। वैसे तो माना जाता है कि सब तक पहुंच गई, लेकिन अगर आप अब इसमें कोशिश कर रही हैं और आप इसमें देख रही हैं, तो आपको टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप रिलैक्स हों, और जो आपका सवाल होता है आप खुशी से सवाल करें, क्योंकि सवाल करना हर एक का हक है। तो लेकिन टेंशन नहीं और आप लेनी। ये ना समझें कि हर कोई आपको वेलकम कहेगा सवाल करने पे, लेकिन कुछ लोग होंगे ज़रूर जिस लेकिन तरह अभी बड़ वैसे भाई जवाब दे के गए हैं। अच्छा देखिए, हाँ मेरी जी, बात सुने, हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारी आइडेंटिटी हमारा नाम है, ठीक है? हमारे कतबे में हमारा नाम लिखा जाएगा, हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारी आइडेंटिटी है, हमारा मजहब हमारी आइडेंटिटी है, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे खामद और हमारे जो भी हमारे जो इतने जिंदगी के जितने भी साथी होंगे, उनमें से कोई भी नहीं होगा। कब्र में हम अकेले लेटे हुए होंगे। हम अपनी बेशक। आइडेंटिटी कैसे खराब कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई तबलीग कर रही हूँ, मैं तबलीग नहीं कर रही हूँ, मैं तो 2-2 फुट उछल रही हूँ कि क्या करूँ मैं? मैं ये जो पैदाइशी हदीस लगी हुई है अहमदी ना, हूँ, सारी जिंदगी मैंने इतनी खिदमत की है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत की है, हिम्मत जितनी हुई है, सारी जिंदगी गुजर गई है, लेकिन मैं ये वाली बात नहीं हो रही है मेरे से। फरिया ख्वाजा कह रही हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इस बात पर कभी कोई मुश्किल नहीं पेश आई कि कौन सी बात है फरिया, जो अभी हमने पढ़ी है वो बात, आपको किस बात में मुश्किल नहीं पेश आई ये बताना। एक बात मैं और ऐड कर दूं, ये सवाल करने पे हजूर ने भी कहा हुआ है कि हर कोई सवाल करो, और आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जो या गैर मुस्लिम सवाल करते हैं, वो आपके अगर वो कोई अहमदी सुन सकता है और उसका जवाब दे सकता है, तो एक अहमदी हजरात से भी ऐसे सवाल करने का वो इतनी हिम्मत रखनी चाहिए हर एक को। और इसलिए हजूर ने भी कहा है कि हर कोई सवाल करो, जो भी ज़हन में आता है वो सवाल करो। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे लिए ये दरवाजे खुले, और यही वजह है कि हम लोग एक साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो हदीस है ना, इसका मुझे रेफरेंस या तो नीचे लिख दें, वैसे इसमें लिखा हुआ है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जो कुछ अता किया गया छः शिया कराम किसी नबी नहीं अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम से में से किसी को अता नहीं किया गया। हमने अर्ज़ किया वो क्या है? फरमाया वो फ्रिया मेरे बाजी ने कुछ लिखा है बाजी, अब वो आगे से मेरा ख्याल है अच्छा, लिखा है इजी सवाल ना करो कि आप ऐसे सवाल ना करो ऐसे ऐसे आपको अपने ऐसे अकीदे के सवाल। ऐसे सवाल ना करो, अकीदे बारे में ही शक होने लगे। अच्छा फरिया, शुरू में अल्लाह ताला ने कुरान में लिख दिया है कि उनसे सब सवाल किया जाता है, वो कहते हैं हम तो अपने बाप दादा के अकीदे पे कायम रहेंगे। तो हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं कि हम लोग वो सवाल ना करें जिसकी वजह से अकीदे पे शक होना शुरू हो जाए। अकीदा इतना कमज़ोर नहीं है कि हमारे मासूमाना सवालों से वो कमज़ोर हो जाएगा, बल्कि हमारा ईमान मजबूत होगा सवाल करने से, और ख़ामोश रहने से बहुत सारे लोग अपने ही उसमें क्रॉस थॉट में चल जाएंगे। ये बात पता है किस तरीके से मुझे महसूस हो रही है? ऐसे हो रही है जैसे फिल्मों में नहीं होता है कि सारी जिंदगी माँ बाप ने पाल के बड़ा किया, और जब जवान हुए तो पता चला कि ये हमारे माँ बाप नहीं है। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल 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 हमारे नबी हमारी वो हैं। अच्छा जी, लेकिन एक ये भी बात है कौसबा जी कि जैसे हम आप भी सवाल कर रहे हैं ना, ये सवाल
उस ज़माने में भी हुए होंगे जब हमारे बुज़ुर्गों ने जमात अहमदियत पूरी कबूल की थी ना, उस वक़्त उन्होंने भी ज़ाहिर-सी बात है ये सवाल किए होंगे। अब हम ये हमारे कर रहे हैं। बुजुर्गों ने जो बताया है उस हिसाब से कोई सवाल नहीं हुआ है उस ज़माने में। बुक्स मैंने सबसे जिनसे जिनसे पूछ रही हूँ बड़ों से, वो कहते हैं कि नहीं, मेहदी आ उस गया, वक़्त हमने बुक्स मान नहीं लिया। थे, उस वक़्त बुक्स नहीं थी, उस वक़्त वो पेजेस छपते थे और अखबारों में ये आता था कि ये वाला हिस्सा छप गया है, अब ये वाला हिस्सा छप गया। टीवी वग़ैरह उस वक़्त होता नहीं था, ना मोबाइल्स होते थे, तो इनको पढ़ते थे। अखबारों की अच्छा, ये अहमियत थी। ओपन आइज़ ने डॉक्टर ड्रेरिंग को जो ऊपर लिया था ना, वो सिर्फ हदीस डिस्प्ले करने के लिए लिया था, उन्होंने अपना माइक तक नहीं खोला था। तो हमने इसलिए नहीं लिया था उनको, ना उन्होंने एक लफ्ज़ बोला और ना कुछ, हदीस की एक डिस्प्ले करने के लिए किया था। मैंने कहा ये भी बात उस पर लिख दूँ। ये जो, चल फिर आगे पढ़ें या क्या करना है? अभी मेरा ख्याल है इसको ही हज़म कर लेते हैं। ओके अंजिला, आपको वो आयत जो हमने पढ़ी थी, ये भूल जाते, फिलहाल भूल जाएं, ये खलीफा सानी ने क्या लिखा, उनका क्या है। ओके। आपने आयत पढ़ी और पहले में और अब में आपका कोई चेंज हुआ है? और दिमाग कहता है कुछ चेंज हुआ है कि उस आयत में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था? जी, वो मैंने ना पता है कि ये आयत बाई निकाली, अच्छा किया कि आपने इसके ऊपर बात की है। मैं भी पूछना चाहती थी, जब कौसर बाजी ने कहा है ना कि यहाँ लिखा हुआ है मेरे बाद डायरेक्ट आएगा एक ना, तो मुझे जो मेरे बाद एक, हाँ, डायरेक्ट उसमें नहीं है। वो ही मैं पूछना चाह रही थी कि अरबी में, आप अरबी जानती हैं, आप ज़रा देखें कि वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे ये पता है कि अरबी में ना इची बिची करके सारा कुछ बताते हैं, जो उनके इतने ज़्यादा अल्फाज हैं कि वो जो हम वो ऐसे, मुझे पता है कि उनके हैं बहुत ज़्यादा अल्फाज। तो आप मुझे ये बता दें कि उधर लिखा हुआ अरबी में डायरेक्ट आना? नहीं, डायरेक्ट नहीं है, मेरे बाद। मेरे बाद। अच्छा, एक चीज़ का मुझे लगता है, जहाँ पे भी ज़िक्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उसको क्लियर करने के लिए ईसा इब्न मरियम लिखा। शायद मैं ये सोच सकती थी कि हो सकता है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वो मिलाते हैं चेहरे वग़ैरह, क्या कहते हैं कि वो आएँगे दोबारा, तो उनके बिल्कुल दोनों के ऑपोज़िट चेहरे हैं। तो मैंने उस लिहाज से सोचा था कि ये हों, लेकिन नहीं। कुरान करीम में ईसा इब्न मरियम यानी कि मरियम का बेटा, उनका ज़िक्र है। लेकिन इनका जो है वो, अच्छा, अगर वो कहीं हदीस कौन, जो मैंने उनको भी बता रही थी कि मैं ईसा की बशारत हूँ, मुझे लगता है कि वो हदीस हमें लगानी चाहिए। कहाँ मिलेगी हमें? अभी लिखा था ऊपर उसका हवाला। लेकिन प्लीज़ अगर कोई गुस्से में आके कुछ भी लिखने लगे ना, तो सवाल करने पर कोई पाबंदी नहीं है। दोबारा लिख दे, मुझे हवा मिस हो गया कहाँ है। यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे मुश्कातुल मसाइब 5759। ये कौन सी हदीस की किताब है? नहीं, हम लोग मुखालफत नहीं कर रहे जजा भाई, नहीं, ये मुखालफत नहीं ये है ये।